بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کا ایمان افروز تذکرہ کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بہادری کے وہ کارنامے اور واقعات آپ کی گوش گزار کریں گے جن کی بنا پر آپ رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کا لقب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہادری کے واقعات آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں اور آپ کا دل جذبہ ایمانی سے منور ہو جائے گا۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ پہلے دوستوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں جمعۃ المبارک کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اصل نام عبد المناف اور کنیت ابو طالب ہے۔ ان کا تعلق بنی ہاشم خاندان سے ہے۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی خاندان بنو ہاشم سے تھی۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب اور آپ کے القابات مرتضیٰ، اسد اللہ، حیدر کرار اور شیر خدا ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے چچا ابو طالب سے اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مزید گہرا ہو گیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت علی شیر خدا کی زندگی شجاعت و بہادری میں بھرپور ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر دشمنان اسلام اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی المرتضیٰ خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی تھی کہ اسد اللہ تعالیٰ کا شیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یاد رہے کہ ملک عرب میں یہودی اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے۔ وہ اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد ان لوگوں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان سب لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ وہ ہر لڑائی میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑتے اور انہوں نے دشمنوں پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ اسلام اور مشرکین کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر کا ہوا۔ رمضان المبارک 2 ہجری کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے مجاہدین کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار مکہ کی فوج کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2-2 3-3 آدمیوں کو ایک اونٹ پہ سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعید انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اسلامی لشکر کے جھنڈوں میں ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چند آزمودہ کار مشوروں کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت کی ٹوہ میں روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدمت بڑی عمدگی سے سر انجام دی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی، تو لشکر اسلام سے 3 انصاری جانباز ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ قریشی جنگجوؤں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے کو نکلنے والے تینوں جانباز مدینے کے انصاری ہیں، تو انہوں نے ان سے لڑنا اپنی توہین سمجھا اور بآواز بلند کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں، ہماری قوم اور قبیلے کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پہ بھیجو۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قریشی جنگجوؤں کو ان کے مقابلے کے لیے حکم دیا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان مجاہدوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی یہ تینوں قریشی بہادر اپنے حریفوں کے مقابلے کے لیے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنن فانن ہی اپنے حریف کو خاک میں ملایا اور خون میں نہلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مد مقابل عتبہ بن ابی ربیعہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مد مقابل شیبہ بن ابی ربیعہ۔ البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ان کے حریف نے زخمی کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فوراً حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کو میدان جنگ سے زخمی حال میں اٹھا کے لے آئے۔ عام لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار دشمنوں کے لیے برق بے اما بن گئی اور انہوں نے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔
मुशरिकीन को इबरतनाक शिकस्त हुई। उनके 70 आदमी मारे गए और 70 ही गिरफ्तार हुए। इस लड़ाई में कुरैश के जो मशहूर जंगजू हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों कत्ल हुए, उनके नाम ये हैं: वलीद बिन उतबा, हारिस बिन रबिया, मुत्तला बिन अबी सुफियान, अकील बिन अल-अस्वद, नौफल बिन खुवैलिद, आस बिन सईद, हुरमला बिन उमरू बिन अबी उक़बा, अबू कैस बिन अल-वलीद, आजिज बिन साइब बिन उमैर, तैसर बिन अल-मजाज, आस बिन बुनिया, अज़मा बिन अल-अस्वद, हारिस बिन ज़मा, उमरू बिन उस्बान बिन काब, मालिक बिन तलहा, इब्न तैम। ये 16 नाम हैं। अलबत्ता आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों कुल मक़तूलीन की तादाद 19 बताई जाती है, मगर इनके अलावा चंद और मुशरिकीन भी तेगे अली रज़ियल्लाहु अन्हु का शिकार हुए। कहते हैं एक मुशरिक उमरू बिन अबी सुफियान को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैदी बनाया। जंग के बाद हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत में से एक ऊँट, एक ज़रा और एक तलवार हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अता फरमाई थी। दोस्तों, याद रहे कि 3 हिजरी में कुफारे मक्का ने बद्र की लड़ाई का बदला लेने के लिए बड़े जोरों शोर से मदीने पर चढ़ाई कर दी। उनकी फौज में 3000 सिपाही थे। काफिरों ने मदीने के शुमाल में 2.5 मील दूर ओहद पहाड़ के करीब डेरे डाल दिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 आदमियों के साथ कुफार के मुकाबले के लिए निकले, लेकिन रास्ते में मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन अबी मुनाफिक 300 मुनाफिकों को, जिनका ताल्लुक बनु सलहा और बनु हारिस कबाइल से था, इनको अपने साथ लेके वापस चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 700 आदमी रह गए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की सफ़ें इस तरह बांधी कि उनके पीछे ओहद पहाड़ था और सामने दुश्मन की फौज। इस ओहद पहाड़ में एक दर्रा था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को इस दुर्रे में खड़ा कर दिया ताकि दुश्मन इस दुर्रे के रास्ते पिछली तरफ से हमला न कर सके। इन तीरंदाजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से हिदायत की थी कि खाह कुछ भी हो जाए, तुम इस दुर्रे से बाहर हटना। दोनों अफवाज एक दूसरे के मुकाबले पे आई तो काफिरों का एक बहादुर तलहा बिन अबी तलहा मैदान में निकला और बावाज़ बुलंद कहा, कोई है जो मेरे मुकाबले पे आए। ये सुन के हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़ कर उसके मुकाबले में आए और तलवार के एक ही वार में उसको ढेर कर दिया। इस मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर का नारा बुलंद करके अपनी खुशी जाहिर फरमाई। इसके बाद तलहा के 2 भाई और 3 बेटे एक एक करके मैदान में आए, लेकिन सब मुसलमान बहादुरों के हाथ से मारे गए। कहते हैं कि तलहा के एक भाई अबू सईद ने मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा तो उसका सामना भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया और अपनी तलवार के एक भरपूर वार से उसको जमीन पे गिरा दिया। उसका सर काटने ही वाले थे कि वो नंगा हो गया, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने उसकी ये हालत देखकर उसको कत्ल करना पसंद न किया और उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। बाद में हज़रत सईद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों मारा गया। अब आम लड़ाई शुरू हुई तो मुसलमान इस जोश से लड़े कि काफिरों का मुंह फिर गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत से दूसरे मुजाहिदों के साथ काफिरों की सफ़ों में अंदर दूर तक घुस गए और उन्होंने इस जोरों शोर से तलवार चलाई कि काफिरों के कदम उखड़ गए और वो बदहवास होकर भागने लगे। दुर्रे पर जो तीरंदाज मुकर्रर थे, उन्होंने काफिरों को भागते देखा तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ खड़े रहने का क्या फायदा। इन तीरंदाजों के अफसर आला हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने तीरंदाजों को बहुत समझाया कि अभी खतरा टला नहीं, तुम अपनी जगह से न हटो, लेकिन तीरंदाजों ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और सिर्फ 10 मुजाहिदों के सिवा बाकी सब मुजाहिदीन अपनी जगह से हट गए। ये देखकर काफिरों के घुड़सवार दस्ते ने उन 10 मुजाहिदों पर हमला करके उनको शहीद कर दिया और फिर दुर्रे में से गुजरकर मुसलमानों पर टूट पड़ा। कुरैश के जो आदमी भागे जा रहे थे अब वो पलट पड़े और बहुत से मुसलमानों को शहीद किया। इस अचानक हमले से अक्सर मुसलमान इधर उधर बिखर गए। सिर्फ चंद बहादुर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान में जम के खड़े रहे। इन मुजाहिदों में हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी शामिल थे। इन जवां मर्दों ने मैदान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। कुफ्फार बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपकते और हमला करना चाहते, मगर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और दूसरे बहादुर जवान उनको मार भगाते। एक काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूर से पत्थर फेंका और एक ने मौका पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार का वार किया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए और एक गड्ढे में गिर गए। इतने में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। जो मुसलमान दूर थे वो खबर सुन के सन्नाटे में आ गए। असल बात ये थी कि इस्लामी फौज का झंडा हज़रत मासूब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था। वो बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए तो झंडा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने थाम लिया और निहायत बेजिगरी से लड़ते हुए काफिरों को बहुत पीछे मार भगाया।
जल्द ही मुसलमानों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और सिमट कर आपके गिर्द जमा हो गए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक थामा और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको अपने बाजुओं में लेकर गड्ढे से निकाला। फिर सब जानिसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए। काफिरों ने भी पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने पत्थर लड़काकर और तीर बरसाकर उन्हें मार भगाया। जिस वक्त काफिरों ने दर्रे से गुजरकर मुसलमानों पर पीछे से हमला किया था, मदीने से कुछ खवातीन भी मैदान जंग में पहुंच गई थीं। जब कुफार पहाड़ से काफी दूर भाग गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि कौम कुरैश के काफिरों के पीछे पीछे हो जाओ और देखो कि वो क्या कर रहे हैं और उनका इरादा क्या है। अगर वो अपने ऊँटों पर सवार हों और घोड़े उनके पहलू में हो तो उनका इरादा वापस मक्का जाने का है, और अगर वो घोड़ों पर सवार हों और ऊँट हाँक कर ले जा रहे हो तो उनका इरादा मदीने पे हमला करने का है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर उन्होंने मदीने पे हमला करने का इरादा किया तो मैं मदीने जाके उनका मुकाबला करूंगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसी वक्त काफिरों के पीछे रवाना हुए और उन्होंने देखा कि काफिर ऊँटों पर सवार हैं और घोड़े उनके पहलू में है और वो मक्का की तरफ जा रहे हैं। जो कुछ उन्होंने देखा वापस आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे साथियों के साथ कई मील तक काफिरों का पीछा किया। वो मक्के की तरफ भागी ही चले गए और उन्हें पलटकर मुसलमानों का सामना करने की जुर्रत न की। काफिरों का पीछा करने वालों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। याद रहे कि ग़ज़वा उहद में 70 मुसलमान शहीद हुए। इनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम शहीदों को उहद के मैदान में ही दफन किया और फिर वापस मदीना तशरीफ ले गए। इस ग़ज़वे में काफिरों के 27 आदमी मारे गए। इनमें से 5 या 6 हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से और बाकी दूसरे मुसलमानों के हाथों कत्ल हुए। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत का एक और वाक़या हज़रत काब बिन मालिक अंसारी से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि जंग खंदक के रोज़ आम्र बिन अब्द वुद, जो कि 1000 सवार के बराबर माना जाता था, एक झंडा लिए हुए निकला ताकि वो मैदान जंग को देखे। जब वो और उसके साथ सवार एक मुकाम पे खड़े हुए तो उससे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐ अमरो, तू कुरैश से अल्लाह की कसम देकर कहा करता था कि जब कभी मुझको कोई शख्स 2 अच्छे कामों की तरफ बुलाता है तो मैं उसमें से एक को जरूर इख्तियार करता हूँ। उसने कहा, हाँ मैंने ऐसा कहा था और अब भी कहता हूँ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं तुझे अल्लाह और रसूल जल्ला जलालहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। उमर ने कहा, मुझे इनमें से किसी की हाजत नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तो अब मैं तुझको मुकाबले की दावत देता हूँ और इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। उमर ने कहा, ए मेरे भाई के बेटे, किस लिए मुकाबले की दावत देता है? खुदा की कसम मैं तुझको कत्ल करना पसंद नहीं करता। हज़रत अली ने फरमाया, ये मैदान में पता चलेगा। दोनों मैदान में आ गए और थोड़ी देर मुकाबला होने के बाद शेर खुदा ने उसे मौत की घाट उतार कर जहन्नम में पहुंचा दिया। मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं कि अम्रु अब्द वुद मैदान में इस तरह पर निकला कि लोहे की जरें पहने हुए था और उसने बुलंद आवाज से कहा, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? इस आवाज को सुन के हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और मुकाबले के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की। आपने फरमाया, बैठ जाओ, ये अम्रु बिन अब्द वुद है। दूसरी बार अम्रु ने फिर आवाज दी कि मेरे मुकाबले के लिए कौन आता है, और मुसलमानों को मलामत करना शुरू की। कहने लगे, तुम्हारे वो जन्नत कहाँ है जिसके बारे में तुम दावा करते हो कि जो भी तुम में से मारा जाता है वो सीधे उसमें दाखिल हो जाता है? मेरे मुकाबले के लिए किसी को क्यों नहीं खड़ा करते? दोबारा फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की, मगर आपने फिर वही फरमाया कि बैठ जाओ। तीसरी बार अमरों ने फिर वही आवाज दी और कुछ अशार भी पढ़े। रावी का बयान है कि तीसरी बार हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूलुल्लाह, मैं इसके मुकाबले के लिए निकलूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अमरू है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज की कि चाहे अमरू ही क्यों ना हो। तीसरी बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाजत दी। हज़रत अली चलकर उसके पास पहुंचे और चंद अशार पढ़े। अमरू ने पूछा कि तू कौन है? आपने फरमाया कि मैं अली हूँ। उसने कहा, अब्द मनाफ के बेटे हो? आपने फरमाया, मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। उसने कहा, है मेरे भाई के बेटे, तेरे चचाओं में से ऐसे भी तो हैं जो उम्र में तुझसे ज्यादा हैं। मैं तेरा खून बहाने को बुरा समझता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मगर खुदा की कसम में तेरा खून बहाने को कतन बुरा नहीं समझता।
یہ سن کر وہ غصے سے تلملا اٹھا، گھوڑے سے اتر کر آگ کے شعلے جیسی سونت لی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف لپکا اور ایسا زبردست وار کیا کہ آپ نے ڈھال پر روکا تو تلوار اسے پھاڑ کے گھس گئی، یہاں تک کہ آپ کے سر پہ لگی اور زخمی کر دیا۔ اب شیر خدا نے سنبھل کر اس کے کندھے کی رگ پہ ایسی تلوار ماری کہ وہ گر پڑا اور غبار اڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر سنا، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔